Good morning, students. Welcome to you all in my today's class, and I shall teach you all lesson first of textbook of ninth class. Then first lesson is Tom Sawyer. Today's our topic will be Tom Sawyer, which is written by the greatest American poet Mark Twain. तो चलिए बच्चों, आज हम आपको क्लास नाइन्थ का फर्स्ट लेसन टॉम सायर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले हम इसकी समरी जान लेते हैं कि लेसन की समरी क्या है। तो इट इज़ सो कंपल्सरी टू नो अबाउट द समरी ऑफ दिस लेसन Tom Sawyer, which is written by the greatest American poet Mark Twain. In this lesson, Tom, who is a mischievous and lazy boy of this lesson, and second character is Aunt Polly. Aunt Polly was the aunt of Tom Sawyer because Tom is an orphan boy. In his childhood, his mother was died and he was nourished by his aunt named Polly. Tom is expressed a mischievous and lazy boy in this lesson, Tom Sawyer. He mischiefs many times. Sometimes he steals gems from the cupboard door, and he goes with mischievous boy to swimming in the pool. So his aunt named Polly prevents him to do mischief and to be lazy. Once upon a time, he was stealing the gem from the cupboard door. His aunt saw him and she prevents not to steal the gem again, but he does not accept it. Another time he steals gem. Then Aunt Polly decided to punish Tom at this time, and she thought that if I do not punish Tom, then he will be lazy and baked in future time or in coming time. So Aunt Polly thought, I must strict him. So she thought a plan to strike Tom. She called him and said, Tom, come here. Where is my stick? When Aunt Polly said it, Tom said to his aunt,
look behind it, you auntie. It was a great opportunity to run away, Tom. When Aunt Polly turned behind her, Tom ran away from there. Soon he climbed over the fence and far away. Seeing this sight, Aunt Polly became so angry, and she thought that I must restrict him, and next time, I know tomorrow is Saturday and there is no school on Saturday, so I shall punish him. Next time, Aunt Polly said to Tom, Tom, come here. It is a fence. You have to whitewash of this fence. And at first, when Tom saw this fence, he sighed and thought that it is so high and so long, and I am not able to whitewash this fence alone. But after some time, some friend of Tom Sawyer came there, like Ben Rogers as well as many other came there, and all together they whitewashed the fence very soon. And in the second episode, once upon a time, Tom is not feeling well. His health was damaged. Aunt Polly was fond of many types of medicine. She thought that if the child does not feel good, then we should bath him from cold water. So Aunt Polly stands Tom in the courtyard and threw cold water over him, but it was not useful for Tom. And next time, Aunt Polly threw hot water over him and gave him some medicine to swallow, but Tom did not like to chew or swallow medicine. Tom did not like to eat or did not like to take medicine. So one day a cat came in the room. Tom was looking this, and once again Tom poured all the medicine on the cat's mouth, and very soon it seemed that the cat ran away to and fro in the room, breaking all the materials or toys of the room. She ran away. Hearing this noise or sound, Aunt Polly came there and asked Tom, what is this? What is the matter? But Tom did not say to her. And after some time, Aunt Polly gauged all the incident, and she thought that if this medicine is not fit for boys or fit for Tom, so then this medicine will not be if this medicine is not fit for cats, so then this medicine will not be fit for boys. So she said to Tom, you have not need to more medicine any longer. Then it is the summary of this lesson. तो देखिए बच्चों, मैंने इसमें यही बताया, टॉम सायर नामक पाठ में टॉम एक अभागा
या एक अनाथ लड़का होता है जो कि बहुत दुष्ट और शरारती प्रवृत्ति का होता है और वह मुरब्बे की चोरी करता है और शरारती और दुष्ट बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। उसकी इस दशा को देख करके उसकी मौसी आंट पॉली बहुत परेशान होती हैं। एक दिन वो मुरब्बा चुरा रहा था, उसकी मौसी ने उसको मना किया, लेकिन नेक्स्ट डे वो इस काम को कर रहा था। तभी उसकी मौसी ने उसको दंड देने के लिए बुलाया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसे दंडित नहीं करती हूँ तो आगे चल करके यह लड़का दुष्ट और आलसी हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे दंड देना होगा। और उन्होंने टॉम को बुलाया और दंड देने के लिए जब कहा तो टॉम वहाँ से बहाना बना करके भाग लिया। और इसके पश्चात आंट पॉली ने सोचा कि मुझे किसी तरह से उसे दंड देना होगा, अन्यथा वह आगे चलकर बेकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगले दिन शनिवार है और शनिवार को स्कूल बंद है और मैं टॉम से इस चहरदीवारी की सफ़ेदी करवाऊंगी, यही उसका दंड होगा। इसलिए अगले दिन उन्होंने टॉम से चहरदीवारी की सफ़ेदी करने के लिए कहा और जब टॉम कूची और सफ़ेदी की बाल्टी को लेकर वहाँ गया, कुछ ही समय पश्चात उसका मित्र बेन रोजर्स और उसके अन्य साथी भी वहाँ आ गए और इस प्रकार से सारे साथियों ने मिलकर उस चहरदीवारी की सफ़ेदी कर दी। और दूसरे पार्ट में एक बार टॉम की तबीयत खराब हो गई और उसे दवा की ज़रूरत थी, परंतु उसकी मौसी आंट पॉली कई प्रकार के दवाओं के विषय में जानती थी। उन्होंने सोचा कि यदि कोई लड़का बीमार पड़ता है तो उसे ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। इसलिए वह उसे आंगन में खड़ा करती थी और ठंडे पानी से नहलाती थी, परंतु इस प्रकार से उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने गर्म पानी से नहलाना शुरू किया और कुछ उसे दवाओं को खाने के लिए देती थी, परंतु मैंने बताया कि टॉम दवाओं से घृणा करता था, वह दवाओं को खाना नहीं चाहता था। इसलिए जब उसकी मौसी नहीं देखती थी तो वह दवा को बिल में डाल देता था। एक दिन एक बिल्ली उस कमरे में आई और टॉम ने उस दवा को बिल्ली के मुंह पर डाल दिया और वह दवा इतनी ज्वलंत थी कि वो दवा बिल्ली के मुंह पर पड़ने के पश्चात वह बिल्ली ऐसे लगा कि जैसे पागल हो गई हो। वो इधर उधर भागी और कमरे में इधर उधर दौड़ती हुई रास्ते में पड़ने वाले सभी चीज़ों को तोड़ती हुई आगे निकल गई। इस प्रकार से आंट पॉली ने जब शोर को सुना तो वो दौड़ती हुई आई और उन्होंने टॉम से पूछा, टॉम क्या बात है? परंतु टॉम ने कुछ नहीं बोला, वह हंसता रहा। परंतु कुछ समय पश्चात आंट पॉली स्वयं समझ गई कि जब ये दवा बिल्ली के लिए उपयुक्त नहीं है तो शायद यह दवा टॉम के लिए भी उपयुक्त नहीं होगी। इस प्रकार से उन्होंने टॉम से कहा कि टॉम, अब आपको इस दवा को आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से जब टॉम ने सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो it is the Hindi summary of this lesson, Tom Sawyer, which is written by Mark Twain. Now we start this lesson. All the students, see your book.
दिस इज टॉम सायर, यह टॉम सायर है। टॉम उसकी मौसी टॉम को बुला रही हैं। टॉम नो आंसर, टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। टॉम नो आंसर, टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। व्हेयर कैन बी ही, आंट पॉली ने सोचा व्हेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने स्वयं से पूछा ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह यहीं कहीं होगा। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे में देखा। एंड देन, और इसके बाद शाउटेड अगेन, दोबारा चिल्लाकर बोली टॉम टॉम नो आंसर, टॉम ने उत्तर नहीं दिया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुल्ली, बूढ़ी महिला विचारवान पूर्वक वहाँ खड़ी रही। सडनली, एकाएक या अचानक। शी हेयर्ड आ साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी। शी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह तुरंत पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा था। द सेकंड मीनिंग ऑफ द वर्ड कबर्ड मीन्स अलमीरा। means its Hindi meaning is almari. There was jam all round his mouth, उसके मुख के चारों ओर मुरब्बा लगा हुआ था। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Aunt Polly ने क्रोधित होकर पूछा What have you been doing? टॉम, आप क्या कर रहे हो? When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, she went on, वो बोलती गई। You have been stealing the jam again, तुम दोबारा मुरब्बा चुरा रहे हो। Don't tell me you haven't, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? मैंने तुम्हें सैकड़ों बार बताया कि अलमारी से दूर रहो। Where is my stick? मेरी छड़ी कहाँ है? Aunt Polly took her stick. Aunt Polly ने अपनी छड़ी उठाई and raised it high, और इसे ऊपर उठाया। She was about to strike Tom hard, वह टॉम को तेज मारने वाली थी। Look behind you, auntie, shouted Tom. Shouted Tom, टॉम ने चिल्लाकर कहा आंटी, लुक बिहाइंड यू, आप पीछे देखें। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए मौका था। चांस, द सेकंड मीनिंग ऑफ द वर्ड चांस, अपॉर्चुनिटी। मीन्स इट्स हिंदी मीनिंग इज अवसर या मौका। He rushed out of the house, वह घर के बाहर भाग गया। He climbed over the fence, वह चहर दीवारी के ऊपर चढ़ गया। What is the second meaning of the word fence?
बताइए बच्चों। फेंस, इट्स सेकंड मीनिंग इज बाउंड्री वॉल। इट्स हिंदी मीनिंग इज चहर दीवारी। He climbed over the fence, वह चहर दीवारी के ऊपर चढ़ गया। Soon, जल्दी ही, he was far away, वह दूर निकल गया। Aunt Polly was angry, Aunt Polly नाराज थी या क्रोधित थी, but she had to laugh, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। He is a bad boy, वह एक बुरा लड़का है। She said to herself, उन्होंने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम, मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। बट परंतु आई हैव टू, लेकिन मुझे मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, तो वह बड़ा होकर दुष्ट और आलसी हो जाएगा। विक्ड, विक्ड मीन्स मिस्चीवियस। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे उसे दंड देना होगा। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आह भरी। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे उसे मुरब्बा चुराने के लिए दंड देना होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को विद्यालय बंद है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी है। बट परंतु आई शैल मेक टॉम वर्क, मुझे टॉम को काम देना होगा। दैट विल पनिश हिम, वही उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी बच्चे स्वतंत्र थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, यह एक सुहावना दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, पक्षीगण गीत गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, द ट्रीज बहुत से पेड़, एंड फ्लावर्स और फूल, लुक्ड सो फ्रेश बहुत ताजे, एंड लवली और सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, वास्तव में टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल दी अदर बॉयज़, सभी दूसरे लड़के वर गोइंग, तैरने के लिए जा रहे थे। टॉम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम निराशापूर्वक घर के बाहर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, वह एक लंबी कूची लिए हुए था। इन द अदर, दूसरे हाथ में, ही कैरीड अ बकेट, वह एक बाल्टी लिए हुए था। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। द सेकंड मीनिंग ऑफ द वर्ड बकेट मीन्स पैल। इट्स हिंदी मीनिंग इज बाल्टी।
हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉज द फेंस, उसकी मौसी उसे चहरदीवारी की सफ़ेदी करने के लिए कह रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम निराशापूर्वक चहरदीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज़, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, चहरदीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई वॉज 30 यार्ड्स, 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने अपनी कूची को सफ़ेदी में डुबोया। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने चहरदीवारी पर एक छोटा निशान बनाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इससे और छोटा सफ़ेदी का निशान बना। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरी बार बहुत छोटा सफ़ेदी का निशान बनाया। टॉम सेट डाउन, टॉम नीचे बैठ गया। एंड साइड हैवली, और गहरी आह भरी। तो बच्चों, आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग नोट करें। प्लीज़ नोट डाउन दिस होमवर्क इन योर नोटबुक। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड आंट पॉली लव हिम और लव टॉम? व्हाई डिड Aunt Polly love Tom? Question mark. And second is, why did Aunt Polly want to punish Tom for stealing jam? Why did Aunt Polly want to punish Tom for stealing the jam? Question mark. And third question is, how did Aunt Polly punish Tom? How did Aunt Polly punish Tom? Question mark. And fourth question is, write the title of the lesson from which the above noted passage has been taken. Who is the writer of this lesson? जैसा कि मैंने इस लेसन में आप लोगों को बताया है और ये क्वेश्चन आप लोगों को all the student will solve or will write the answer of this question, and remaining part of this lesson
Tom Sawyer will be teach you all tomorrow. Thank you very much.